electric circuit. Now, we say circuits. You know circuit? Do you know circuit? What is the meaning of circuit? Any idea? Any idea about circuit? Good morning, sir. Good morning. From which electric current flows. Good morning, sir. Good morning, Subham. Good morning. Actually, by the circuit we mean, closed path. Simply, circuit is defined as a closed path of different components. Closed path, you know, there is the closed path of different components. It is called as circuit. Is that clear? बच्चों समझ के सभी लोग? Closed path Yes. of different components at a place. So you know components, you know about the battery, you know about the cell, you know about the bulb, you know about the switch, you know about the fuse. You all this know? Is that clear? So that is circuit. Like say this is this is symbol of bulb. This is bulb, you know this? This is bulb. And Yes, this sir. here I have Is open circuit. Open switch. here the switch is open. Here the switch is open. Now switch is open. So this circuit is said to be open circuit. So this is bulb. This is switch. What is this? Two batteries are there. So this is what? This is a cell. Cell comprised of two batteries. Is that clear? बच्चों बोलो समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, battery Yes, sir. comprised of cells now. So battery is comprises of one or more cells. Yes. Now this is bulb. This is bulb. This is switch. This is connecting wire. Now here this switch is open. Switch is open means no current is flowing. This circuit is said to be open. Circuit is said to be open. It means no current is flowing. No current is flowing in the circuit. Is that clear, बच्चों? समझ आ गया सबको? Yes, sir. So this is about this open circuit. Now when we जब इसको ऑन करेंगे, प्लीज नो टॉकिंग. सो यदि इसको यहां से कर देंगे तो क्या होगा? स्विच इज क्लोज. Now this circuit is said to be closed. In this condition, circuit is said to be closed, and so we say current is flowing. Current क्या हो रहा है? Current इसमें flow कर रहा है. Is that clear? This is said to be circuit. बात समझ आ गई बच्चों सबको? Yes, sir. बेटा समझ आ गई? Yes. अब मैं आप लोगों को कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ. अभी जस्ट वेट. This, this we have seen, this. ये मैंने आप लोगों को मंडे को दिखाया था. देखा था ना मंडे को? वही वाला है. देख रहे हो बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, जो मैंने बनाया था इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि सर्किट कैसे बनता है, हाउ सर्किट इज मेड। मैं थोड़ा सा इसको कर नहीं पाया था इसको। सो सी, ये दिस इज क्लोज सर्किट। ये सर्किट कैसा बच्चों, सर्किट कैसा है ये? Close circuit. Close. ये Close. मतलब सर्किट क्या है? क्लोज है। बल्ब जलने का मतलब क्या है? सर्किट इज क्लोज। क्लोज है बच्चों, लाइट इज मारी। Yes, sir. So this is closed circuit. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा। Wait for some time. Now it's over. अब ये देखो बच्चों, देख रहे हो सारा ये, इसमें क्या है? Yes, sir. ये बैटरी है, दिस इज बैटरी, Yes, sir. और ये Yes, sir. क्या है? बल्ब, और ये इसका स्विच है। Yes, sir. क्लियर? अब इसमें Yes, क्या sir. है? ये सर्किट है। यहाँ से कैसे, ये जो मैंने बल्ब बनाया, बल्ब है इसका, Yes, sir. ये क्या है? स्विच, और ये क्या है? Yes, sir. ये बैटरी। Cell. बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? स्विच ऑफ करो इसको, स्विच ऑफ द माइक्रोफोन। दिस इज, देख रहे हो ये, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये, दिस इज बैटरी, Yes, sir. Yes, sir. ये बल्ब, Yes, ये sir. स्विच। सो ये क्या है? दिस इज सर्किट। और ये यहां से ये जल रहा है तो क्या बोलेंगे? दिस इज सेड टू बी ये स्विच। नाउ स्विच इज ऑफ। स्विच क्या है? ये ऑफ है। Off. तो जो है स्विच ऑफ है तो क्या बोलेंगे? दिस स्विच इज ऑफ, इट मींस दिस सर्किट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसको? ओपन। Open circuit. Sir, open. इट इज सेड टू बी ओपन और क्लोज। Open. Open circuit. देखो Open, क्या sir. हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज मींस ऑपरेट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So what is important? Circuit is said to be, open when no current is flowing. बात समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, अभी आप लोगों को पता ही है। You have to draw this in your, notebook also. You have to draw in notebook also. ठीक है बच्चों? ये Yes, sir. दिस इज वायर। दिख रहा वायर, दिख रहा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, दिस इज sir. कनेक्टिंग वायर। अब मान लो कि इस कनेक्टिंग वायर को मैं जोड़ू इसमें, जैसे ये देखो, ये बल्ब का एक इसमें वायर है और इसको मैं यहां से जोड़ दे रहा हूं इसको मैं। अब देखो ये यहां से मैं इसको बैटरी पर टच कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? जल रहा है। दिस इज कनेक्टिंग वायर। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज कनेक्टिंग वायर? कनेक्टिंग वायर, इट इज अ मेटालिक कंडक्टर। कनेक्टिंग वायर क्या है? मेटालिक कंडक्टर। देखो ये भी मेरे पास कनेक्टिंग वायर है। अभी आपको मैं अगले किसी और दिन आपको कुछ दिखाऊंगा, हाउ टू मेक मैग्नेट, हाउ टू मेक इलेक्ट्रो मैग्नेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. sir. Now we will see, this is about the electric circuit. Now coming to our next very important part, the applications, applications of electricity. Applications, this I had explained on the first day also. So applications or usage of electricity. In our home there are many equipments. अपने घर में इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, सबको पता है? Yes, Yes. sir. पता है बच्चों? जैसे उसमें क्या होता है? Yes. We have the television, we have geyser, we have electric press, होते हैं सब I में। see. So what we get benefit. Fan is there. So
what we get? Fans consume the electricity and we get the air. How मिलती है अपने को? So electricity basically, electricity performs different functions by converting into other forms of एनर्जी. दूसरे फॉर्म में एनर्जी में क्या करती है? वो चेंज करती है. ठीक है बच्चों? इधर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Like फैन से क्या मिलता है? फैन में करंट पास करते हैं तो फैन रोटेट करता है फैन. तो उसमें क्या है? मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है? वो जनरेट करता है. और इसके चलते अपने को क्या मिलती है? हवा मिलती है हवा. Yes, sir. We get Yes, air. sir. Similarly, हीटर में क्या मिलता है? करंट से उसमें हीट एनर्जी और क्या मिलता है? हॉट वाटर. सो these are the different conditions. ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ये आगे चले बेटा, आगे चलो. Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बल्ब छोटे होते हैं, कुछ बल्ब बड़े होते हैं, कुछ हीटर छोटे होते हैं. सबको पता होगा गीजर के बारे में, इमर्शन रॉड के बारे में पता होगा. कुछ ज्यादा करंट लेते हैं, कुछ कम करंट लेते हैं. सो नाउ वी विल सी द अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हीटिंग इफेक्ट of current. Heating effect of current. What is the meaning of heating effect? कौन बताएगा बच्चों? What is the meaning of heating effect? शुभम सिंह. What is the meaning Yes, sir. of heating effect of current? What, sir? Heating effect of current. अच्छा ओके, दिख नहीं रहा क्या? Heating effect of current. Meaning of heating effect of current. Sir, I think heating effect of current is that when heater generates Yes, the very element. excellent, Subham. Whenever we pass current through a device like electric press or immersion rod or geyser, or even bulb also, there the heating, सब में heating होती है बच्चों. By passing current, what happens? Heat is produced. होती है बच्चों. So this is meaning of heating effect of current. Is that clear? So heating effect of current means the generation of heat, production of heat when current is passed through a conductor. Conductor पता है सबको? conductor पता है सबको? Yes, sir. So that is the point. Conductor is object. तो इसमें जानेंगे कंडक्टर. So conductor क्या है? An object through which current is passed. बेटा कॉपी में लिख रहे हो सभी लोग? Are you writing in copy, Yes. notebook? Yes, sir. बेटा Yes, sir. ठीक है, लिखते चलो. So this is conductor. जैसे ये वायर है, ये जो वायर है, वायर क्या है?
This wire is conductor. So अब इसमें किन बातों पर डिपेंड करता है? Heating effect depends on so many factors. So heating effect या heat produced depends on different factors. जैसे सबको पता होगा बल्ब छोटा होता है, बल्ब बड़ा होता है, हीटर कैपेसिटी कम होता है, हीटर कैपेसिटी ज्यादा होती है, सबको पता है बच्चों. So it depends on so many factors. ये कई बातों पर डिपेंड करता है. ठीक है. Now the factors are important. Factors are, first factor is, factors are amount of current, amount or strength of current, amount or strength of current, amount or strength of current being passed, कितनी क्वांटिटी करंट पास करते हैं? बच्चों बात समझ आ रही है? लिसनिंग. शुभम सिंह. Yes, sir. Yes, sir. This is first point. Yes, sir. More the current, more the heat produced. You all must be knowing. घर में क्या बोलते हैं कि जब भी हीटर चलाते हैं, इमर्सन रॉड चलाते हैं, तो बिजली का बिल ज्यादा आता है. पता होगा सबको ये. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. क्यों होता है? क्योंकि इमर्सन रॉड में या इलेक्ट्रिक प्रेस में या गीजर में करंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. सो more amount is there, and so it is the first point. जितने ज्यादा करंट पास करेंगे उतने ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. Now second point is the resistance of the conductor. रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों कुछ आइडिया है? रेजिस्टेंस. चलो रेजिस्टेंस छोड़ो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्ट? कैन यू टेल मी मीनिंग ऑफ रेजिस्ट? रुकावट. What? Yes, very good, excellent. So resistance means obstacle. Resistance का मतलब क्या बेटा? Obstacle. So आपको सबको पता होगा कि जो हीटर का फिलामेंट है या प्रेस का जो फिलामेंट है वो किस मेटल का बना होता है? एनी आइडिया? नेम द मेटल फ्रॉम विच the filament of heater or filament of electric press is made. Come on. Sir, aluminium. Sir, aluminium. What? Aluminium. No. Shubham Singh. Iron. No iron, beta. It is something else. Copper. चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ. It is made up of नाइक्रोम. किसका बना होता है? नाइक्रोम. देखो इसमें नाइक्रोम. ये नाइक्रोम इज एन एलॉय. नाइक्रोम इज एन एलॉय. एलॉय ऑफ, देखो ये क्या है? निकल एक मेटल है. क्रोमियम एंड आयरन, ये तीन से बना होता है नाइक्रोम. देखा होगा आपने, जब हीटर में पास करते हैं करंट, स्विच ऑन करते हैं, हीटर क्या होता है? हीटर बिकम्स रेड. सबको पता है ये? पता है क्या बच्चों?
Yes, sir. निकल, Yes, N sir. फॉर निकल, देखो इसके याद रखना बच्चों, N फॉर निकल, I फॉर आयरन एंड क्रोम फॉर क्रोमियम, ठीक है। वैसे ही बल्ब आपने देखे होंगे, बल्ब जो होता है ना, लट्टू बल्ब, लाइट निकलती है, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? So tungsten. Yes, very good, excellent. Filament of bulb is made up of tungsten. किसने कहा बेटा टंगस्टन के बारे में? Who has said me? टंगस्टन किसने Sir, बताया? Gargi. Who? Gargi. Yes, Yes, sir. very good, excellent. So nichrome is 1 point. Tungsten क्या है बेटा? It is metal, but it is alloy, mixture of nickel, iron and chromium. ठीक है बच्चों? So दो factors हो गए, amount of or strength of current. More the current, more the strength, more the rating. Similarly, resistance means obstacle. Obstacle. जैसे आपने देखा होगा, गीजर के ऊपर लिखा होता है 2000 वॉट या 1000 वॉट का, वॉट के बारे में बात हुई थी बच्चों। You know what? The energy Yes, required, energy required, current required. It is measured in watt. So this is second part. Now coming to third portion also. So third is time period. Time period for which current is passed. जैसे अभी विंटर अप्रोच कर रही है, सबने नहाना चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा ल्यूको मोटर से, तो क्या करते हैं, जो गीजर होता है उसका स्विच को हम पहले ऑन कर देते हैं, पता होगा सबको। We do this. Yes, sir. Why you do this? You do this because water in the tank is cold and it takes some time. Geyser takes some time to give us hot water. Is that clear बच्चों? समझ आ रहा है? So बच्चों ये Yes, sir. इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको बेटा लिखना है, लिख रहे ना सभी लोग ये? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Keep it up. These are the factors on which the heating effect of current. ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टर। व्हाट इज रेजिस्टर? नाम सुना है क्या? अभी मैंने कहा कि रेजिस्टेंस कहा मैंने रेजिस्टेंस कहा मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Conductor with रेजिस्टर high है resistance. एक्चुअली। रेजिस्टर इज ए टाइप ऑफ कंडक्टर which allows little amount of current to flow. लिखो बेटा, it is a special type of conductor. It is a special type of conductor which allows less current to flow through it. उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे रेजिस्टर या क्या बोले इसको रेजिस्टर। देखो मैं तुम लोग दिखा रहा हूं बच्चों, देखो ये इसमें दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिख रहा है बच्चों ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का इसमें ये वाला दिख रहा है बच्चों, Yes. दिख रहा है ग्रीन कलर का। Yes, sir. Yes, sir. दिस दिख रही है, ग्रीन कलर का दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. This is resistor. So we use resistor in a circuit to check the current. मान लो कि अभी ये बैटरी बहुत बड़ी है, ये बल्ब क्या बहुत छोटे हैं, तो अचानक से करंट ज्यादा फ्लो हो जाए तो ये बल्ब खराब हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। Is that clear? So it Yes, is sir. also called a resistor. So resistor टाइप का क्या होता है?
It is, you know, this डिवाइस है, सेफ्टी मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मालूम चल गया रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर क्या करता है, ये हीटिंग करता है। रजिस्टर क्या करता है, हीटिंग करता है। ठीक है बच्चों, मालूम चल गया, मालूम चल गया बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, फ्यूज के बारे में। कल भी किसी ने पूछा था फ्यूज, फ्यूज का सिंबल क्या होता है? फ्यूज का सिंबल क्या होता है बच्चों? सिंबल ऑफ फ्यूज बताया था ना मैंने, यहां से करके ये फ्यूज है, ये फ्यूज है। कल बनाया था सिंबल मैंने। Yes, sir. तो ये इसमें क्या है, ये इसमें फ्यूज है। फ्यूज का फंक्शन क्या है? if in any circuit very high amount of current passes through, very high amount of current passes through, then the appliance may be burned, appliance may be burned। so fuse क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। मैंने कल भी बताया था आपको, एमसीबी के बारे में बताया था। सबको एमसीबी के बारे में पता होगा, यू नो बच्चों? हेलो, लिसनिंग? Yes, sir. सो Yes, sir. फ्यूज क्या है? फ्यूज it is a safety device, it is safety device which controls the excess amount of current, excess amount of current flowing through the circuit, flowing through the circuit by blowing it off, blowing it off। blow off का मतलब क्या है? उड़ जाना। it is, फ्यूज की डेफिनेशन बेटा, it is a safety device which controls the excess amount of current flowing through the circuit by blowing it off। जैसे सुना होगा आपने कि मान लो घर में लाइट चली जाती है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया। बोलते हैं बच्चों, फ्यूज उड़ गया बोलते हैं। Yes, sir. तो Yes, अब क्या लगाते हैं हम? एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है, सबको पता होगा, ये पता होगा बच्चों। तो Yes, sir. एमसीबी क्या करता है? इट इज ऑटोमेटिक, इट इज ऑटोमेटिक फ्यूज मैकेनिज्म। देखा होगा एमसीबी, एमसीबी क्या होती है? एमसीबी ऊपर चली जाती है, पता होगा सबको, पता होगा बच्चों? पता नहीं है? Yes, sir. तो फ्यूज होता कैसा है? अपने घर में देखना, या तो बिजली के बोर्ड पर फ्यूज लिखा होता है या मीटर के पास होता है। तो फ्यूज क्या है? इट इज, यू नो, जस्ट लाइक दिस, ये दिख रहा है ये बच्चों, इट इज, यू नो, दिस पोर्सलिन, चीनी मिट्टी का जैसा होता है बर्तन, ऐसा रेक्टेंगल, और यहाँ पर एक मेटल की ऐसे पत्ती होती है। मेटल क्या होती है? ऐसे क्लिप होती है, और इसमें एक वायर बांध देते हैं, बहुत बारीक वायर। दिस इज फ्यूज वायर। और यहां से क्या है? यहां से कोई भी करंट जा रहा है। सो इफ इन द सर्किट, बच्चों दिख रहा है, समझा रहा है सबको? समझा रहा है? इफ Yes, sir. if suddenly current flows in very large amount, suddenly flows in very large amount, तो क्या होगा? अप्लायंस जल जाएंगे। सो दिस इज द सेफ्टी मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? तो फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, यहां से ये गल जाएगा। फ्यूज वायर को ऐसा सर आपने एग्जर्ट्स के नीचे क्या लिख रखा है? क्या बेटा? सर आपने एग्जर्ट्स के नीचे क्या लिख रखा है?
control the excess amount of current having flowing through the circuit by blowing it off. Okay, sir. Blowing it off. ये flowing है बेटा, flowing. ठीक है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? This ये जो यहाँ से वायर टूट जाएगी, तो क्या बोलेंगे? blown fuse. इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इस फ्यूज से क्या बोलेंगे? This fuse is called as blown fuse. ठीक है? Yes, sir. तो बेटा टाइम अब हो गया, ठीक है बच्चों? टेक केयर. Thank you, Sir, sir. sir, today Isha wasn't able to join because of network connection. नो प्रॉब्लम. I will send Let it. me ठीक है बेटा? नो प्रॉब्लम. Yes. ओके बेटा, टेक केयर. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. Thank you.